Jai Hind everyone. Welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, as you know that we have completed chapter 12, but you all are saying that we should start chapter 11 also because that concept is not clear for you all. So now after completing chapter 12, we are going to start chapter 11 so that your concept will be clear and you will be able to understand the chapter easily. So let us start with chapter 11. First of all, we will discuss with the help of a PowerPoint presentation. Then after we will proceed to your chapter. By screen sharing, I will explain the chapter 11. So let's start. Dear students, the name of your chapter is Sun, Air, Water, Temperature and the Weather. So first of all, we will see what is air and why air is helpful for us. So first thing is that all living things need water. Every organism who is present on this earth's surface, they need water for their survival. Either it is animal, either it is plant, or if it is people. If anyone is there who is living person, they need water for their survival. The animal, the plant, and if you will see the people, they also need the water for our survival. If we think that what is the water and how it looks, if we discuss it, we will see that water has no color, it has no smell and it has no taste. So the water has no color, no smell and no taste. All living things need water and air to live. The people, the person, the living things or the plant, those which are present on the earth's surface, they need water for their survival. Every organism who is living, they need water and air. They need water and air for their survival. It is found in 3 states. If we discuss that this water is found in 3 states. First one is solid, liquid, then gas. Solid, that means the ice which you are seeing, the ice cream which you used to feed, these are solid. So the water found in 3 types of forms, that is solid, that is ice, you can see here, then liquid, that means water which you drink, and the gas. Gas, that means water is also found in the form of vapor. It is also found in the form of vapor. So this is vapor, that is gas form. Water changes state when you heat it or cool it. The water, it changes its state, it changes its form or it changes its shape when you heat it or you cool it. If you cool the water, it will become ice, that means it will form solid. But if you will just heat it, then the water will become in the form of vapor, that is a type of gas, that is a form of gas. So if you want to change the state of water, you have to heat it or cool it, then you will be able to change the state of the water. The 3 forms of water, you can find water in 3 different forms, that is liquid, solid and gas. These 3 forms are found on the basis of the state of water. 3 forms are there, solid, liquid and gas. Water is liquid, ice is solid which is at 0 degree and water vapor is the form of gas, it is at 100 degree. Does water change? The question is, the water changes. Does the water change? No. Water just change its state, water just change its form, but the आप कह सकते हो the formula of water does not change ever. It does not change ever. Only the state of water is changed. The water turns to gas when it hot. When it is hot, the water, it changes into gas. And water turns to solid when it is very cold. This is water and this is ice. If you just cool the water, it will change in
ice or it will form in the solid. Water turns to liquid at room temperature. At room temperature, if you discuss at room temperature, that means the normal condition in which you are living. If that normal condition is there, water will resist in its liquid form only. Okay? Does water change? No, water just change its shape. I have already told you that water just change its shape. It melts. It melts, that means solid. If it is in the form of ice, it melts and it forms the ice to water. Just it is changing its state. It evaporates. The water evaporates and forms the vapor. So the content, the formula, the combination of water is not going to change, just the state of the water is going to change. So if you heat the ice, it will melt, and if you will freeze the water, then it will comes to ice, it will form the ice. But if you heat the water, it will form in the vapor form, and if you condense it, it forms the water. So these things we have discussed about the water. Now we will move to your chapter and discuss the things which were written in your chapter. So let us start with your chapter and your content. So dear students, the name of your chapter is Sun, Air, Water and Weather. It is the part of Unit 6, Weather and Soil. So let us start with your chapter and your content reading and the explanation of your content. So the chapter is Sun, Air, Water and Weather. Sun, we will discuss about the sun. Then after we will discuss about air. Then after we will discuss about water. Then after weather. Sun is the ultimate source of energy in the solar system. In the solar system, sun is the ultimate source of energy. That means if sun is not there, nothing will be there. Because if sun will be not there, the plant is unable to prepare food for themselves. And if plant will not prepare the food, if they are not present on the earth, then where were we? हम कहाँ पर रहेंगे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे? हम किनका भोजन करेंगे? हमारे पास भोजन के लिए कोई कंडीशन, हमारे लिए भोजन के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इफ़ प्लांट विल नॉट बी देयर. सो अगर प्लांट नहीं होंगे तो जो जानवर हैं वो भी तो उनको नहीं खा पाएंगे, और वो भी उनको नहीं खा पाएंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, तो आप क्या खाओगे? सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन ecosystem. Okay, weather is a condition of the atmosphere at a given place and a given time in term of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. Weather मतलब होता है मौसम. Weather is the condition of atmosphere. Weather, that means मौसम. It is the condition, it is the पोजीशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. आपके वातावरण का वो माहौल, कह सकते हो आपके वातावरण का वो माहौल जो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पर हो, जहाँ पर टेम्परेचर देखा जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाए, वातावरण का प्रेशर देखा जाए, हवा कैसी है देखा जाए, और वहाँ पर कैसा मॉइस्चर है, नमी है, क्या है. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह का तापमान, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ की हवा और वहाँ की नमी को अगर हम एक साथ मिला कर के नापते हैं, देखते हैं, वो उस एरिया का वेदर कहा जाता है. सो वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. वेदर इट यूजुअली चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. आपने कल देखा था, कल फॉग था, लेकिन आज फॉग नहीं है. दैट इज द चेंज ऑफ वेदर, द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक वेदर. So yesterday it was foggy, it was mist, but today there is no fog. So it varies. This is the weather which varies from day to day and place to place. ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में भी इस समय इतनी ही सर्दी पड़ रही हो, या इस जिस तरह की सर्दी हमारे यहाँ पर है, ऐसी सेम ठंड मुंबई में पड़ रही हो. तो जगह और जगह के हिसाब से और दिन के हिसाब से अगर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, हवा, मॉइस्चर, तापमान, इन सब में चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेदर. इट कैन इवन चेंज फ्रॉम आवर्स टू आवर. ये घंटों पर भी बदलता है. जैसे अभी थोड़ी देर में धूप हो जाए, दैट मीन्स वेदर का चेंज हो गया, टेम्परेचर राइज कर गया.
अभी टेम्परेचर अगर 8 डिग्री है, 10 डिग्री है, अगर यही धूप निकलने के बाद टेम्परेचर 12-14 पहुंच जाएगा, दैट इज द चेंज इन द टेम्परेचर. सो द वेदर इट चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर, घंटे घंटे पर भी थोड़ा बहुत मौसम में चेंजेस देखे जाते हैं. नाउ व्हाट कॉज द वेदर टू चेंज, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेदर के बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लेट्स नो, हम देखते हैं. द सन्स रोल इन वेदर चेंज. पहली बात, जो सन है, सूरज है, वह किस तरीके से वेदर के चेंज में रोल प्ले करता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड अदर पार्ट हैज़ नाइट. आपको पहले से पता है कि धरती का वह पार्ट, ये धरती है, अगर हम बात करेंगे ये धरती है, धरती का वह पार्ट जो सूरज के पास हो. जैसे आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये सूरज के नज़दीक है, जो सूरज के सामने धरती का वह पार्ट जो पड़ता है वहाँ पर दिन देखा जाता है. तो और दूसरा पार्ट जिस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं उस जगह पे हम देखते हैं अंधेरा होता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है धरती अपनी ही जगह पर रोटेट करती है. पृथ्वी जो है, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, अलोंग विद दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी क्या करती है? अपनी ही जगह पर भी चक्कर लगाती है, साथ ही साथ वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है. जब अपनी ही जगह पर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का एक भाग सूरज के सामने होता है जहाँ पर दिन होता है, और दूसरा भाग सूरज के पीछे की तरफ पाया जाएगा जहाँ पर अंधेरा देखा जाता है. तो दिन और रात का फर्क तो इस तरीके से आया. लेकिन अगर हम बात करें सीजन कैसे बदलते हैं, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द सीजनल चेंज, आपको पता है सूरज के तरफ चारों तरफ धरती मूव करती है, जिस तरीके से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो धरती क्या कर रही है? यहाँ से यहाँ, फिर इधर से इधर मूव कर रही है. मूवमेंट ऑफ अर्थ यहाँ पर शो किया जा रहा है. तो होता क्या है, ये मूवमेंट जो है, जो आपकी ऑर्बिट है, दैट इज इन द इलिप्टिकल शेप, इट इज इन द इलिप्टिकल शेप. और धरती जब उस पर मूव करेगी, जब सूरज के सबसे नज़दीक होगी तो सबसे ज़्यादा गर्मी सूरज की पाई जाएगी धरती पर. लेकिन जब धरती सूरज से थोड़ा दूर हो जाएगी, उस कंडीशन में धरती पर उतनी तेज़ गर्मी नहीं पाई जाएगी और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है. धरती पर उस समय ठंड देखी जाती है. यू ऑल्सो नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आपको पता है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती रहती है. one half of it close to the sun while the other half is away from the sun. पृथ्वी का आधा भाग सूरज के तरफ होता है जहाँ पर दिन होता है, और आधा भाग जो सूरज के ऑपोजिट होता है वहाँ पर अंधेरा होता है. द पार्ट विच इज़ क्लोजर, जो नज़दीक का पार्ट होगा धरती के, वो गर्म माना जाता है, क्योंकि सूरज की गर्मी डायरेक्टली उस एरिया में पड़ती है. इसलिए जो सूरज के नज़दीक का भाग होगा धरती का, वहाँ पर गर्मी पाई जाएगी, और जो सूरज से दूर का भाग होगा वहाँ पर सर्दी या ठंडा या टेम्परेचर में कमी देखी जाएगी. ओके, सो इट इज़ समर इन द पार्ट ऑफ अर्थ. और जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा देखी जाएगी, ज़्यादा देर तक रहेगी, वहाँ पर समर होगा, गर्मी होगी. अगर हम बात करें जब पृथ्वी दूर रहेगी तो वहाँ पर ठंडी देखी जाती है. द पार्ट ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर एंड शॉर्टर डेज. जो पार्ट धरती का सूरज से दूरी पर है, उस पार्ट में जो हवा होगी, या कह सकते हो कि दिन जो होगा वो छोटा होगा और ठंड ज़्यादा होगी, जिसको हम विंटर सीजन के नाम से जानते हैं. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज चेंज इन द सीजन. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि धरती का जो रिवॉल्यूशन है वो सीज़न यानी जो मौसम है उसके बदलने, उसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हाउएवर इवन ड्यूरिंग वन सीज़न, कह रहा है कि अगर हम बात करें सिर्फ गर्मी की या सिर्फ सर्दी की या सिर्फ बरसात की, तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. क्यों? जैसे गर्मी है तो गर्मी में भी तो बारिश हो जाती है. ठंड है इस समय, ठंड में भी 8-10 दिन 15 दिन पहले बारिश हो रही थी. क्यों? क्योंकि दिस इज़ द चेंज ऑफ वेदर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर और हवा जो है, इन सब के फ़र्क के वजह से हो रहा है. इसलिए 15 दिन 10 दिन पर बारिश भी आ जाती है कभी कभी. ठीक, तो दिस इज़ द चेंज ऑफ वेदर. और सीज़न क्या होते हैं?
जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, जो धरती का भाग सूरज के नज़दीक होगा वहाँ पर गर्मी देखी जाएगी, और जब धरती सूरज से दूर होगी, दूरी वाले ऑर्बिट में रहेगी, उस समय धरती पर ठंडी पाई जाएगी। द सन कॉज विंड टू ब्लो, जो सूरज है यही कारण है हवाओं के बहने का। द हीट ऑफ सन कॉज विंड टू ब्लो, जो सूरज की गर्मी है वह हवा के बहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर, हवा क्या करता है सूरज का तापमान ज़्यादा होने के वजह से, जब सूरज तेज धूप होगी, तेज गर्मी होगी या गर्माहट जो सूरज की है वो क्या करती हैं, हवाओं को गर्म कर देती है। और जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो लाइटर हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। क्या होता है, धरती पर लगातार सूरज की किरणें पड़ने की वजह से जो धरती पर हवा है वो गर्म हो जाती है, और जब गर्म हवा हो जाती है, जैसे वाटर वेपर है, जब आप पानी उबालते हैं आप देखेंगे वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है, आसमान की तरफ जाता है, ठीक उसी तरीके से जब हवाएं गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ जाएंगी वहाँ पर कूलिंग होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और वहाँ पर जब ठंडा पड़ जाता है, जैसे पानी है, पानी हल्का बर्फ़ भारी, उसी तरीके से जब ऊपर हवाएं उड़ करके जाएंगी गर्म हवाएं, तो वहाँ पर ठंडी की वजह से, वहाँ कूलिंग की वजह से वो हैवी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ती जाएंगी, उनमें मूवमेंट देखा जाएगा। इस तरीके से हवाएं बहती हैं। द सन कॉज चेंज इन द स्टेट ऑफ वेदर, जो सूरज है वह मौसम के बदलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यू नो दैट क्लाउड ब्रिंग अस रेन, आपको पता है बादल जो हैं बारिश लाते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपको जो बादल होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो कुछ इस तरह से बनते हैं। क्या होता है, जो समुद्र हैं, समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से इवेपोरेट होता है, उबल जाता है, या कह सकते हो गर्म हो जाता है, या वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है, तो समुद्र का पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बन के आसमान में पहुंच गया। आसमान में पहुंचा तो वहाँ पर टेम्परेचर कम था, और वहाँ पे जब टेम्परेचर कम था तो हुआ क्या, वहाँ पर वो कंडेंस होने लगा, वो इकट्ठा होने लगा, इस तरीके से कंडेंस होने लगा। ऊपर उड़ के गए और वहाँ पर इस तरीके से कंडेंस हुए तो बंध गए आपस में, और वहीं पर क्लाउड का फॉर्मेशन है। इन क्लाउड्स को हवा अपने साथ बहा करके ले जाती है। जब हवा अपने साथ बहा करके ले जाती है, जिस जगह पे हवा रोकती है उसको, वहाँ पर बादल बारिश करते हैं। इस तरीके से बादलों का फॉर्मेशन होता है। So in today's lecture we have discussed about the water. Tomorrow we will water and sun. Then after we have discussed about the weather condition. Tomorrow we will discuss about the air. So that's all for today guys. Thank you everyone.